Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program where we discuss the macro and microeconomic issues, those macro and micro level where market may move forward or move importantly. So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या फिर जो भी लेवल्स हैं वेयर द मार्केट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस वीक, right, which is starting from this 2nd of May. First May holiday, there will be a holiday here in Indian markets, but we will see what are the macro and micro issues here starting from global levels, right. तो बिटकॉइंस में जैसा कि आप देख सकते हैं, दो वी डू नॉट ट्रेड इनटू दिस बिटकॉइन बट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इट्स from its chart, though it is very volatile, but फिर भी that is very good learning experience. So you can have this a little bit of resistance around this 31,250 के आसपास एक छोटा सा resistance है. If market breaks this little, this is weekly chart, please mention this is weekly chart. So if market closes above this 32,000 level, definitely it is going to on week to week basis it may touch this 36,000 का level, right. डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है दैट इज ऑफ 25,000, बट इट मे वायलेट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी वायलेंट. द प्राइसेस मूव हियर इन बिटकॉइन, they are very violent here, so it may breach all these levels, right. So there is no guarantee that these levels are going to be a major support and resistances. Yes, definitely this 20,000 is going to be very major support, and on upper side this 36,000 is going to be very major resistances as of now here in Bitcoin. चलिए देख लेते हैं दिस डाउ जोन्स की पोजीशनिंग आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी यहाँ पे ऑन वीकली बेसिस. इफ़ यू सी दिस द वीकली बेसिस इज इट वाज अर्लियर it was facing resistance over this trend line, almost resistance, a complete zone of resistance it was, right. And again now it has closed. This is the first time, I hope after this let me erase all these drawings. Yes, this is the first time a very much bullish green candle has closed above this on the weekly basis above this trend line, which is a very good symptom as of now. And you can see also market has started making higher lower highs, right. See, so this is lower high pattern also, lower high where it has broken this this minor it took a minor correction here, but it was see, you can also see there was also a resistance, right. ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी था और मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा एक माइनर डिप भी लगाया अबाउट आई थिंक ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑलमोस्ट 30 to 35%, बट यहाँ से इसने जो लोअर हाई क्रिएट करना शुरू किया है. And the last closing of this week, this is especially weekly analysis, so we are having this weekly chart here. तो ये जो वीकली क्लोजिंग है अब हमारे पास टारगेट हो जाएगा दिस. लेट मी गेट दिस line. Yes, our target is 34,300 and or maybe to be more specific 34,400 is going to be a major resistance zone on week to week basis, right. अगर आप सिर्फ वीक टू वीक बेसिस पे देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू वर्क एज मेजर रेजिस्टेंस जोन, और इसके ऊपर वी विल सी इट मोर बुलिश साइड ऑन अ डेली बेसिस. if we convert it on daily chart, you can also see the resistances, very clear cut resistances here are. If we close above this 34,400 or 500, then definitely it is going to be very bullish. Downside mein this is going to work as a major support, though this trend line is also major support, but this 33,500 or 650 is going to be a major support as of now. This one, let me drag down this, erase this one, and also you can drag down this one. Yes, this is the support, this is the major support for this this Dow Jones sorry for this yes, this is the support zone,
यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जोन हो सकता है 32,000 के आसपास, 32,280 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे लेवल्स पे। S&P की अगर आप बात करेंगे तो S&P वीकली बेसिस पे, ऑन दिस वीकली बेसिस, यस, यू कैन सी इट हैज़ ऑल्सो क्लोज्ड अबव दिस रेजिस्टेंस जोन। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर इसने क्लोज किया है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो अब मेजर रेजिस्टेंस जोन आएगा 4200 के आसपास, 4200 के आसपास दिख रहा है हमें। सो दिस इज, इफ इट क्लोजेज अबव दिस 4200 लेवल, अगर 4200 लेवल्स के ऊपर क्लोज करता है तो we can see some more bull side on weekly basis especially, and it may take a kind of resistance around this 4300, which is almost 100 points above from its present level. So let me make it a little bit drag from this 43,000. yes, this is going to work as major resistance as of now. downside में हमारे लिए अब ये जो जितने भी resistance zone थे, they are going to work as support zones. So this 4100 is going to work as major support zone here. दूसरे लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, वी आर स्टिल इनटू द नो ट्रेड जोन, दो दिस कैंडल, दिस इज वेरी मच बुलिश. Yes, you can go bullish on IT stocks and also on this Nasdaq, right? But this is for me, it is I would not be interested before closing of this zone. इस जोन के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू play on bullish on Nasdaq especially. This is a no trade zone for me right as of now. दूसरी फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल्स की आप अगर देखें, क्रूड ऑयल हैज़ स्टार्टेड अगेन, इट हैज़ स्टार्टेड कंसोलिडेशन अराउंड दीज लेवल्स. यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, और मार्केट में रिएक्ट ऑन ईदर साइड इफ इट ब्रेक्स दिस 6700 to 20, दिस 6720 एंड ऑल्सो 6130 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है 6130 के लेवल्स को, और 6100 के, टू बी मोर स्पेसिफिक 6100 के लेवल्स को, तो हम डाउन साइड में वी विल सी दिस 5500 लेवल ऑन वीकली बेसिस. रिमेंबर ऑलवेज ऑन वीकली बेसिस. और 6720 के ऊपर अगर हम क्लोज करना शुरू करते हैं, वी में सी दिस 7700 का इंपॉर्टेंट लेवल. दीज लेवल्स आर गोइंग टू वर्क एज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर एज ऑफ नाउ. डॉलर इंडेक्स की पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे, दैट हैज़ बीन पोजीशन ऑन अ वेरी, yes, you can see this W pattern here on dollar index, but as of now this is a very W pattern. खतरे की घंटी हो सकती है अराउंड दिस 105 के आसपास, 105 के आसपास या इसके ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं, वी आर पोजिशन इन अ वेरी वेल मैनर्ड हियर इन डॉलर इंडेक्स. USD INR की बात करेंगे, यहाँ पे USD INR, तो yes, this is USD INR chart. See, it is still trading in between these levels वीकली बेसिस पे 8300 से लेके, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी थी मार्केट में, it is still trading in between these important levels. So that has been positioned in a very well manner. यहाँ पे आप जो बॉन्ड यील्ड्स में करेक्शन देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट. अगर बॉन्ड यील्ड्स के आप चार्ट अभी वीकली बेसिस पे जो देखेंगे, this is one of the lowest point as of now in recent time. This is one of the lowest point. These are the lowest points. तो इसने लास्टली क्लोजिंग दे रखी है लगभग -1 -2% तक की लास्टली क्लोजिंग दे रखी है. और ये 20 ईयर्स और 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट यहाँ से 4% के ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. टिल देन इट इज़ वेरी वेल पोजीशन. देख लेते हैं दूसरे फैक्टर्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. गोल्ड प्राइसेस ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन लिया था, और इसके बाद फिर से अपर ट्रेजेक्ट्री में जाना शुरू किया है. अराउंड 60,000 के आसपास का अभी जो चल रहा है, दैट इज़ वेरी वेल पोजीशन. सो एज ऑफ नाउ, अंटिल इट ब्रेक्स दिस
57,900 का लेवल, टू बी मोर स्पेसिफिक 950 का लेवल, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, इवन दिस मे बी वी मे ड्रैग डाउन दिस, यस, 57,300 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, इट is not looking that much bearish, right? You can see also these patterns. It has broken this zone and also given a breakout around this zone, right? इंडिया विक्स की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डर भी लग सकता है कि इस तरह की इंडिया विक्स की पोजीशनिंग जब भी आती है मार्केट में, कभी कभी फियर आ जाता है, क्योंकि इस तरह की विक्स की अगर वीकली पोजीशनिंग आप देखेंगे तो 2020 में भी, 2020 के फरवरी की अगर आप लो कैंडल्स पे अगर आप जाएंगे वीकली बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे लो विक्स दिखेगी, राइट? लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। यहाँ पे आपको ये सितंबर 21 की लो विक्स दिख रही है, और इसके बाद आपको 2008 की 2018 की जो लो विक्स यहाँ पे दिख रही होगी, द लो इज़ 9.43, एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस low wicks, the lowest point of this wicks is around 2017 का, जो आई थिंक जून में 2017 का जो लो विक्स है, दैट इज़ अराउंड आई होप 8.77%. तो दीज लो विक्स में क्रिएट सम वॉलेटिलिटी. सी, लो विक्स में वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन जब एक्सट्रीम लो पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो वहाँ पे विक्स का शूटअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? और अगर यहाँ से शूटअप होती है और विक्स 18 के ऊपर चली जाती है, अचानक से 18 के ऊपर चली जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली द इमर्जिंग मार्केट लाइक अस हियर इन इंडिया, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लो विक्स में हालांकि ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है, और ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी पेनफुल हो सकती है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू एब्सटेन फ्रॉम हैवी ऑप्शन बाइंग और एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग. हमारा मेजर सेक्टर, मेजर इंडेसेस, दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट आवर मोस्ट फेवरेट बैंक निफ्टी, that we trade mostly here. Also we are trading nowadays Nifty aggressively, so but I would not recommend here to trade you at this low wicks aggressively on any kind of indices. So especially if you are in option buying. So these are the sky zones. You can see अगर मार्केट ने जो क्लोजिंग दे रखी है वीकली बेसिस पे, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट दिस बैंक निफ्टी चार्ट. तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 43,233 के आसपास की क्लोजिंग है. काफ़ी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना है. एक हल्का सा जो ये थ्री सोल्जर पैटर्न की बात हमने कर रखी थी, द वाइट थ्री सोल्जर्स. इसके बाद मार्केट में टेक अ पॉज, मार्केट हैज़ टेकन अ पॉज हियर, but closed above this three soldiers, and again it has resumed its upward movement. तो अभी के लिए अपवर्ड मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 43,400 के आसपास आएगा. हल्का सा रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम डेली बेसिस पे भी देख लेंगे. इसका स्काई जोन होगा दिस, इट इज़ गोइंग टू टच इट्स स्काई जोन, दैट इट इज़ गोइंग टू ब्लास्ट अबव दिस 43,613 के आसपास. जब ये ब्रेक करता है ऑन डेली बेसिस, वी मे सी सम न्यू हाइज अराउंड दिस 44,150 का जो लेवल है, विच वाज आल्सो आवर ऑल टाइम हाई. तो मार्केट इज रीचिंग अराउंड दिस इट्स ऑल टाइम हाई, और अगर अभी आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1100 पॉइंट्स केवल दूर है, विच इज़ नॉट वेरी बिग पॉइंट एज ऑफ बैंक निफ्टी इज़ कंसर्न. बैंक निफ्टी 1200-1300 पॉइंट्स एक दिन में भी कवर करता है, यू वेरी वेल नो दैट, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ गोइंग टू कवर दिस 40, इट इज़ गोइंग टू टच दिस ऑल टाइम हाई विद इन अ डे, बट यू मे बी कॉशियस, वेरी कॉशियस अराउंड दीज जोन्स, राइट? यहाँ पे आपके लिए कॉशियस की बेल फिर से बच जाती है.
तो डेली बेसिस पे चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को हॉलीडे होगा बिकॉज ऑफ दिस महाराष्ट्र डे। सो मंडे ट्यूसडे को देखते हैं कि 2 मई को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग है, क्योंकि सैटरडे संडे का वीकेंड्स और मंडे का उन्हें एक टाइम मिल जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा हो दे विल बी गेटिंग देयर गुड प्रीमियम डीके ऑन ट्यूसडे, राइट। अभी की पोजीशनिंग डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी है। डेंजर जोन हमारे लिए जो है 42,700 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, दिस 42,700 के नीचे शुरू करते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं विद एनी बेयरिश पैटर्न और बेयरिश कैंडल्स लाइक this hammer candle or engulfing bearish engulfing candle, definitely we are going to touch this 42,300. This is going to work as major support और उसके नीचे हमारे लेवल्स काफ़ी डाउन साइड में हो जाएंगे। अपर साइड में आपके पास जो मेजर रेजिस्टेंस जोन आता है 43,400 और उसके ऊपर स्काई जोन। इस स्काई जोन को हम अगर ब्रेक करते हैं 43,600 के लेवल्स को अगर ब्रेक करते हैं तो अपर साइड में 43,780 और 43,800 तक के लेवल्स को हम टच कर सकते हैं। एंड अबव दैट वी मे टच दिस ऑल टाइम हाई 43,880 के आसपास का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह से हम पोजीशन है एज ऑफ नाउ। वी विल आल्सो डिस्कस ऑन डेली बेसिस हाउ वी कैन ट्रेड ऑन ट्यूसडे ओपनिंग, बट बिफोर दैट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ज़रूरी होता है, तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, दीज आर द पोजिशनिंग इन निफ्टी। सो यू कैन ऑल्सो सी एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था हमने अपर साइड में, इसको आइडेंटिफाई भी किया था। यस, यू कैन सी दिस डब्ल्यू पैटर्न, राइट। एक दूसरा पैटर्न भी आपने आइडेंटिफाई किया होगा यहाँ पे, अगर आप ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया होगा इसका, तो यू वुड हैव फाइंड आउट दिस इनवर्स दिस हेड एंड शोल्डर। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर विच इज गोइंग टू ब्रेक आउट। ये इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट था, राइट। दिस वॉज अ नेकलाइन ब्रेकआउट ऑफ दिस इनवर्स head and shoulder pattern. So you would have, I hope you would have identified this on daily chart, in your daily chart frame, right? So अभी के लिए market is positioned very well, और जितनी भी कंपनियों के results आ रहे हैं that are very good here। और inflationary data जो अगर आप देखेंगे US का, even for India, तो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग है। और अभी के लिए जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें यही डेटा निकल के आ रहा है that inflation has been almost controlled, that is not the very much control, but जितनी कोशिश की जा रही थी फेडरल रिजर्व और आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। तो देयर मे बी अ पॉज फ्रॉम फेडरल रिजर्व एंड ऑल्सो फ्रॉम आरबीआई। तो एक इंटरेस्ट रेट में पॉज हो सकता है फिर से आरबीआई के द्वारा भी और फेडरल रिजर्व के द्वारा, बट दीज आर जस्ट द स्पेकुलेशंस। वी विल सी हाउ द मार्केट में रिएक्ट ऑन दीज न्यूज़, बट स्पेशली इस हफ्ते में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो काफ़ी कुछ क्लियर कर देगी कि व्हाट विल बी द डिसीजन फॉर ऑन दिस इंटरेस्ट रेट। तो अभी की पोजीशनिंग, अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन आता है 18,150 के आसपास, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 18,280 के आसपास आएगा, एंड देन 18,400 के आसपास आएगा। हमारे पास जो ये 18,000 जो अपर साइड में जो मेन रेजिस्टेंस जोन है, अपर साइड में जो मेन रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 18,140 के आसपास, एंड देन 18,280 के आसपास। इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 18,140 and 50, definitely we are going to see this these very important levels. Yes, very important levels around this 18,300. We may touch this 18,300 and also 18,400 on daily basis if we are closing above this 18,300, right? So these are very important levels. I hope you will be marking these levels in your chart. If we are breaking this 18,400 and to be more specific 18,450, definitely
we are going to see these higher levels, 18,720, and then the all-time high is very near. We are again very near to this all-time high. You can see that also into this chart. Our all-time high is 18,887. This is our all-time high, 18,887. We are very near to this all-time high. If we break this 18,880, 90, you may be very you should be very cautious around these all-time highs, but as of now it is our target. This all-time high is our target, right? Downside में हमारे पास जो मेजर सपोर्ट जोन होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो डाउन साइड में 17,580 जो है, 17,580 हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा. This 17,800, this 17,580, 500 is going to work as very important level, right? Again, this 17,000, 17,320 एंड 17,500 मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे. 17,850 इज गोइंग टू वर्क एज वेरी इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट. 17,850 जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा. तो जब तक हम 17,850 के ऊपर हैं, 17,800 के ऊपर हैं, दिस इज वी आर वेरी कंफर्टेबली वेल पोजिशन ईयर इन निफ्टी, right? So these are very important levels on daily basis, on weekly basis. I hope you would be marking all these levels in your chart, and I hope you are learning to mark all these levels in your chart. If not, you can comment me here. I will explain it in structured way, so that you can get help from these levels. If not, then you may also have a contact with me. The link of the contacts has already been given into the description of this video. यहाँ पे टेलीग्राम के लिंक भी दिए गए हैं, वेयर वी ऑलवेज ट्रेड शेयर आवर लाइव ट्रेड्स, लाइव लेवल्स, also live charts. So you may also consult us there in this telegram channel. I hope you are enjoying your Sundays also, so not just reading the charts only. So that's it for today. Thank you very much.